That is innovation. And if I make this as my business point, that is entrepreneurship. Okay, now let's come to our topic. In what way our IIMT Innovation Cell can help you to be innovators, entrepreneurs, and that will be your career. I just remind to you, my dear students, from your college, there have been two students. One was David Steven and Tushar. They have done BCA from your college. They have passed out from the college this year only, that is 2020. They have been a part of my R&D team. They developed variety of multiple drones and they started one company known as Rudra Robotics as a startup. And they got a big contract from Bihar government to go for surveillance drones for Kosi flood affected areas. There is something which they worked in my R&D lab and thereby they learned the art of making drones. They have not been engineers by their degree, but they had the temperament to be the innovators and entrepreneurs later on. So same way, now I take you back to the historical background. That was something which is present and pertaining to our own group of colleges. When in 1930s there was a big recession, as it is known to all of us. In USA, there used to be two companies. One was RCA, that is Radio Corporation of America. Radio Corporation of America. They did not go for layoff. उन्होंने किसी इंजीनियर एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया. But they changed their business. They were in the domain of electrical and electronic appliances. But during recession, they changed the business. They asked their engineers and technocrats and managers to buy coffee beans from farms and churn it into coffee powder. So thereby, RCA was providing salary to the employees. But at the same time, their innovation team, their salary was raised by 10 to 20%. And this research and innovation was continued. And when the recession was over by 1937-38, what they gave us, they launched, which we call today as microwave ovens, which is our day-to-day domestic need. It is available in all the houses today. And it's another application of microwave engineering was radars, which made the Air Force of Second World War very effective. Even today, all the aeronautical engineering their success depends on radars. It was boon in disguise.
means there was recession, their innovation cell was having a higher salary, higher perks, and they developed it. Same way, if you look in our present day context here, during this pandemic time, our R&D innovation cell developed some of the products. One product is very much there. When you enter college, you have to pass through the tunnel. This tunnel was developed and fabricated at our innovation cell. Now you just look at the cost which we incurred in developing it was approximately 7,000 rupees. Whereas it is available online in 36 to 40,000. That here innovation means techno-economics. It has become cost effective. मिक्स्ड लैंग्वेज में बोलूं क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके, आई एम सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप ये देखिए, देर एक और कंपनी है बेल लैब्स यूएस में। दिस बेल लैब्स वाज बेल लैब ही पहली लैब थी जहां पर कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किए थे। तो उस लैब ने अपना जो शुरू किया रिसेशन के दौरान कार्यक्रम, दे चेंज देयर बिजनेस फ्लावर बेचने का। ये फ्लावर कहाँ से कलेक्ट करते थे? आपको सरप्राइज होगा, ये फ्लावर्स लेते थे केरल से, बेंगलोर से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है वहां से। सो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर थे वो इंडिया से एल्सवेयर जहां भी होते होंगे फूल वो खरीदते थे। और जो परफ्यूमरीज थी, जो आज डीओ या परफ्यूम इस नाम से जितने भी पॉप बनते हैं, इंटीमेट, रेवलॉन वगैरह जो भी नाम है, वो सब उनको सप्लाई करते थे। अब आप सोचिए, उन्होंने भी इनोवेशन को कंटिन्यू रखा। उस इनोवेशन का फॉल आउट क्या हुआ? 1947-48 के दरमियान उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इजाद किया जिसको कि आज हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। उस समय जब ट्रांजिस्टर रेडियो बना तो वो मेरे को ध्यान है कि जब मैं बहुत छोटा होता था, 1960-61 की बात है, 1200 रुपये का हमारे यहाँ एक ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर लाए थे, 1200 रुपये का। उस समय $1 जो कि 4 रुपये के बराबर होता था। तो अब आप सोचिए कि $300 का एक रेडियो सेट, आज एक रेडियो सेट आप सोच, प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों हो गए? एम आई ऑडिबल सर? आवाज को क्या हो गया? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सस्ता क्यों हुआ? अब इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप सोचिए। क्या आप सूट लेंथ खरीद के लाते हैं? रेमंड की शॉप से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं? आप 600-700 रुपए का सूट लेके देते हैं। जब आते हैं फैशन डिजाइनर या टेलर के पास, वो भी आपसे सूट की सिलाई 3 से 4 हजार रुपए लेता है। अब आप सोचिए कि वही सूट जब आप रेमंड की शॉप से लेके आते हैं तो आप 2,500 में वही सूट आपको मिल जाता है रेडीमेड, कट टू साइज। वाई? टेक्नोलॉजी वही है, बट उस केस में टेलर ने या फैशन डिजाइनर ने
एक ही सूट आपके नाप का बनाया, जबकि वहां पर उन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज में बना दिया, एल, एम, एस, एक्सएल, एक्सएक्सएल एंड ऑल दिस, एमएल, मीन्स ऑल द बॉडी फ्रेम्स वेर कैटेगराइज, और उसके तहत उन्होंने सूट्स बनाना शुरू किए। अब आप सोचिए कि ये कितना, इट इज अगेन इनोवेशन। इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ, स्टिचिंग टेलरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। सो दैट वे दिस टेक्नोलॉजी जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्ता बनाती है। तो अब आप सोचेंगे कि हमें क्या फायदा इससे। आप हमारी लैब में आएंगे तो अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने के दरमियान एक फैसिलिटी सेटअप कर दी एलईडी बल्ब बनाने की। तो आप सोचेंगे एलईडी बल्ब तो मार्केट में मिलते हैं, इसके अंदर क्या नया है, व्हाट्स न्यू इन इट। अब आप सोचिए व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। आप अगर एलईडी बल्ब बना के अपना कंपनी रजिस्टर करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आरएमसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो आती है 100 रुपए के 8 बल्ब, मीन्स 11 रुपए 60 पैसे का एक बल्ब पड़ता है। और गवर्नमेंट का जो खरीद रेट है गवर्नमेंट पोर्टल पे वो है 100 रुपए के 4 बल्ब, मीन्स 25 रुपए का एक बल्ब। तो अगर आप ओवरहेड से लगा ले, डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, जितनी भी सब चीजें आप जोड़ लें तो भी आपको 2 बल्ब का बेनिफिट होता है। अगर आप पूरे दिन का देखें कि एक आपने सिस्टम, एक प्लांट सेटअप किया जिसमें 1000 बल्ब बनते हैं, तो 1000 बल्ब बनेंगे तो आपने एक दिन में कितने बल्ब सेव कर लिए? 2 बल्ब के हिसाब से 200 बल्ब। सो 200 बल्ब इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस हिसाब से यू मेक योर एंटरप्रेन्योरशिप एज योर करियर। सो वी एट R&D सेल वी आर हियर टू डेवलप टेक्नोलॉजी। अभी हमने पेपर सैनिटाइजर बनाया। अगर जो लोग एमडी सर के ऑफिस में जाते हैं उनने देखा होगा कि अगर आप कोई पेपर अंदर भेजते हैं तो वो पहले उसमें रखना होता है सैनिटाइजर में, उसके बाद उनके पास आता है। इट इज पेपर सैनिटाइजर, क्योंकि पेपर जो है उसको आप केमिकल सैनिटाइजर से तो सैनिटाइज कर नहीं सकते। तो कोई एक ऐसे सिस्टम हम डेवलप करें, एंड वी डिड इट एंड इट इज सक्सेसफुली वर्किंग। अब इसकी जो हमको कीमत पड़ी 2500 के आसपास पड़ी, और मार्केट में ये 10,000 का मिलता है। अब 10,000 का मिलता है, इट इज अवेलेबल इन मार्केट, बट इसके अंदर एज ए करियर अपॉर्चुनिटी आपने इसको 2400 में डेवलप कर लिया, रॉ मटेरियल। अब इसके ऊपर सैलरी पार्ट, डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड वगैरह वगैरह सब जोड़ेंगे तो आप मार्केट में इजीली इसको 5000 में बेचेंगे। थंब रूल बिजनेस का ये होता है,